Good morning, cadets. Today we are going to learn about the moral values. In the introductory part, we have to learn that how the moral values are inculcated among the NCC cadets. How moral values are important in the human life. How it is important for a good leader, for a leadership, and it is well accepted fact that the future of any nation is largely related to the quality of its own human beings. In this context, development of the youth into a confident leader with requisite characteristics and character qualities with personal attributes so that they can take their place as a responsible citizen of the country assumes great importance. जैसा कि हर एक देश के लिए मानव के गुणवत्ता को महत्वपूर्ण माना गया है। अगर हम युवाओं का विकास चाहते हैं तो उनके अंदर हमें वैयक्तिक चरित्र में गुणवत्ता लानी पड़ेगी। In order to achieve this objective, the youth needs to be exposed, beside the academics, to such activities which help them in developing their personality and character, and in turn making them a good leader. तो उन बच्चों के बीच में हमें कुछ ऐसी शैक्षणिक कार्य के अलावा विधियां लानी पड़ेगी जिससे उनके अंदर उनके व्यक्तिमत्व का विकास हो और उनके चरित्र का निर्माण हो। Leadership is an important feature of every sphere of human activity, whether at play, work or at war. लीडरशिप हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो प्लेग्राउंड हो, मानव की क्रियाएं हो, काम का स्थल हो या फिर वार हो, युद्ध भूमि हो। In fact, wherever there are two or more people functioning together, there is a need for a leader. To develop into a good leader, a person needs certain values in him, or can say he must possess distinctive ethics in his life. एक अच्छे नेता के लिए उसके पास उसके जीवन के मूल्य होने चाहिए, उसके कुछ जीवन के तत्व होने चाहिए, तभी इस प्रकार के नेता के फॉलोअर्स भी बढ़ते जाएंगे। हम मोरल वैल्यूज़ के बारे में क्यों पढ़ना चाहते हैं? व्हाट इज़ द एम ऑफ दिस लेसन? टू अक्वाइंट the cadets about the importance of values and code of ethics. कैडेट्स को मूल्यों के बारे में जानकारी देना और उसके महत्व को बताना, ये इस लेसन का उद्देश्य है। इसमें हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, मीनिंग ऑफ वैल्यूज़ और इथिक्स। दूसरे में देखेंगे अ फ्यू इम्पोर्टेंस वैल्यूज़, हमारे जीवन में कौन सी महत्वपूर्ण मूल्य हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको मूल्यों के महत्व के बारे में बताया गया है, तो हमें उसका अर्थ भी पता होना चाहिए। वैल्यू मीन्स अ स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर एंड इथिक्स इन द टर्न मीन्स अ सेट ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स दैट govern a person's behavior
In ancient India, young boys and girls learned the fundamentals of correct behavior and moral principles. The and guidance of Sant and Gurus in their Gurukulas, and at a later stage specialized in a various field of knowledge. A person of values excels others in that fields. The values and ethics which drive a person may be inherited from the society they live in, that is, from the people around them, and to a large extent the family they hail from. इसका मतलब कि हमारे जो मूल्य हैं वो पुरातन काल में हम संत लोगों से या हमारे गुरुओं से गुरुकुल में जाकर उनको आत्मसात किया जाता था। आज की आधुनिक स्थितियों में हम इन सभी मूल्यों को फिर से हमारी शिक्षा विधि के द्वारा या फिर कुछ अन्य क्रियाओं के द्वारा, जैसे कि हमारी एनसीसी है ना, इनके द्वारा हम इसको बच्चों में आत्मसात करने के लिए उन्हें सिखाएंगे। ह्यूमन बीइंग इज ए कॉम्प्लेक्स क्रिएचर, अ मिक्सचर ऑफ गुड एंड इविल. द इविल टेंडेंसीज इन हिम आर ऑफ नेगेटिव नेचर, which ultimately lead to destruction. On the other hand, goodness is manifested in brotherhood, unity, cooperation. This goodness can only overcome negative tendencies if a person either has certain values inherent in him or he inculcates them. मानव का जो स्वभाव है वो बहुत ही क्लिष्ट है, कॉम्प्लेक्स नेचर का है, और उसमें दोनों अच्छे और बुरे दोनों प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं। जो बुरी प्रवृत्तियां होती है उसके कारण वह हरदम नकारात्मक सोचने लगता है, उसकी सभी कार्य गतिविधियां नकारात्मक होती है, विनाशकारी होती है। उसकी विपरीत यदि उसकी सोच सकारात्मक है, अनुकूल है, तो उसके अंदर, उस व्यक्ति के अंदर बंधुता, समानता, सहकार करने की भावना, ये सब चीज़ें उसके अंदर निर्माण होती है, और वह इन प्रतिकूल या नकारात्मक भावनाओं से उभरकर विषम परिस्थितियों में भी अच्छे कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं। और ऐसे ही लोगों को जीवन में यश मिलता है। हमें ऐसे ही प्रकार की सकारात्मक मूल्यों को आत्मसात करना चाहिए। A leader may be intelligent, knowledgeable and hardworking, but unless he is driven by a set of values which are morally acceptable, he cannot be a good leader. The importance of a good behavior by a leader on all occasions cannot be too strongly emphasized. Behavior must be beyond reproach. Generally, a group in particular and its work and achievement as a whole are judged by the values and the behavior of good manners of a leader. तो नेता बुद्धिमान होना चाहिए, ज्ञानवान होना चाहिए और परिश्रमी होना चाहिए, लेकिन केवल इतने से ही नहीं होगा। उसके द्वारा जो जो बातें कही जाती है उनका स्वीकार करना चाहिए, लोगों ने उसका स्वीकार करना चाहिए, और तभी वो एक गुड लीडर, एक अच्छा नेता बन सकता है। आज हम लोग जीवन में कौन कौन से मूल्य हैं जिनका इस्तेमाल, जिनका उपयोग एक अच्छे नेता बनने के लिए हमें हो सकता है, या एक अच्छा जीवन जीने के लिए भी
हो सकता है। तो हमारे एनसीसी कैडेट्स के अंदर भी इन सभी मूल्यों का आत्मसात होना बहुत ही आवश्यक है। तो इन सभी गतिविधियों के पीछे वही उद्देश्य है कि कैडेट्स के बीच में मौलिक विचार आत्मसात हो, उन्होंने अच्छे मौलिक मूल्यों को आत्मसात करना चाहिए। A person behavior is reflected in his conduct. व्यक्ति का स्वभाव उसके क्रियाओं से या उसके कामकाज से पता चल जाता है। How a person behaves in a particular situation will be an indicator of his potential for leadership. एक विशेष स्थिति में वो किस प्रकार से बिहेव करता है, उससे हमें पता चलता है कि उसके अंदर नेता बनने के गुण है या नहीं है। As the old saying goes, practice what you preach. आप जो बता रहे हैं उसी को प्रैक्टिस में लाओ, या फिर पहले प्रैक्टिस करो और फिर बताओ, है ना। इसके लिए बहुत सारे उदाहरण हमें बताए जाते हैं। As a leader is the person who guides the group. The saying is more applicable to him. अगर कोई लीडर अपने ग्रुप को गाइड कर रहा है तो जो चीज़ें वो बता रहा है वो चीज़ें उसके अंदर में भी होनी चाहिए, है ना। तभी लोग उसको क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। क्योंकि ये चीज़ें क्या है, एक दूसरे से सीखी जाती है। और कैसे सीखी जाती है? निरीक्षण से सीखी जाती है, देखकर सीखी जाती है ना। इसलिए उस नेता के अंदर भी इन सभी मूल्यों का होना बहुत ही आवश्यक है। ओनली दोज वैल्यूज कैन बी प्रीच्ड विच अ लीडर हिमसेल्फ पजेस। वही बातें नेता ने बतानी चाहिए जो वह स्वयं करता हो। सर्टन वैल्यूज विच इम्प्रेस एवरीबडी आर ऑनेस्टी, ट्रूथनेस, सेंस ऑफ ड्यूटी, लॉयल्टी, consideration for the people, giving others their due, and to stand by one's own principle. कुछ ऐसे मूल्य होते हैं जो सबको प्रभावित करते हैं, जैसे कि ईमानदारी, सच्चाई, कार्य की पद्धति, हमारी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोगों के प्रति हमारा आदर भाव, दूसरों के प्रति हमारी सहकार्य भावना, ये सब चीज़ें, ये सब जो मूल्य हैं ये हमें प्रभावित करते हैं। अ पर्सन हु प्रैक्टिसेस गुड ह्यूमन वैल्यूज एंड फॉलोज अ प्रिंसिपल्ड कोड ऑफ एथिक्स विल इसेंशियली स्टैंड आउट एज ए गुड लीडर. अ फ्यू इम्पॉर्टेंट वैल्यूज इन डे टू डे लाइफ आर एज फॉलोज. और हमारे सामान्य जीवन में भी इन सभी मूल्यों का प्रभाव पड़ता है, जैसे कि ऑनेस्टी, ईमानदारी। इसमें ये हमें दूसरों से कुछ चुराना नहीं चाहिए, किसी को फंसाना नहीं चाहिए, किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये सब चीज़ें अगर हम नहीं करते हैं तो हम ईमानदार हैं। इंटीग्रिटी होना बहुत ही ज़रूरी है। प्यूरिटी, शुद्धता होना चाहिए। नो डुप्लिसिटी, इनसर्टनिटी इन थॉट्स, वर्ड्स और डीड। आपके काम में किसी का नकल नहीं होनी चाहिए। हमारा जैसा स्वभाव है उसी प्रकार से हमने अपने काम को पूरा करना चाहिए। हमारे काम में, हमारे जीवन में शुद्धता होनी चाहिए, क्योंकि आप दूसरों से कैसे हैं, अलग हैं। और स्वयं का व्यक्तिमत्व यह उसी प्रकार होना चाहिए जैसा हम रहते हैं। डिसिप्लिन, बिहेवियर अकॉर्डिंग टू इसेंशियल रूल्स एंड नॉर्म्स विच इज सेल्फ इम्पोज्ड। अगर अनुशासन में हम रहते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे
बहुत सारे काम आसानी से जीवन में पूरे हो जाते हैं। सेल्फलेसनेस, अनसेल्फिशनेस, राइज अबव सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड इंडिविजुअलिज्म, सेल्फ सेक्रीफाइस। मतलब केवल स्वयं के लिए जीना नहीं चाहिए। हर समय केवल अपना ही भला हो, अपना ही नाम हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम समूह में रहते हैं तो हमारे समूह के लिए हमारा उत्तरदायित्व तो बनता है। हमें कुछ स्वयं को त्यागना पड़ता है। वो जो त्याग की भावना है, वो त्याग की भावना या मैं से बढ़कर हम है, या स्वयं के हित से समूह का हित हमें अधिक प्यारा जब लगता है, तब हमारे अंदर में सेल्फलेसनेस आ गई है, ऐसा समझ में आता है। लॉयल्टी, ट्रूथ, फेथफुल टू ड्यूटी, लव और ऑब्लिगेशन टू पर्सन और इंस्टीट्यूशन, फेथफुल इन एलिजियंस टू द नेशन और मदर कंट्री। हम हमारे काम के प्रति वफादार होना है, हमारे इंस्टीट्यूशन के प्रति वफादार होना है, हमें हमारे देश के प्रति वफादार होना है। फेयरनेस, बीइंग इम्पार्शियल, गिव राइट डिसीजन। तो फेयर होना चाहिए। हम जो भी चीज़ें हमारे निर्णय से बता रहे हैं, वह निर्णय बायस नहीं होना चाहिए, किसी एक के फायदे के लिए या दूसरे के नुकसान के लिए नहीं होना चाहिए। हरदम वह एक अच्छा निर्णय होना चाहिए जो सबके लिए अच्छा हो। इक्वालिटी, ट्रीट एवरीवन इक्वली। नेता ऐसा होना चाहिए जो सबको समान नज़रिए से देखता हो, सबको समान वागणूक देता हो। इक्वालिटी उसके अंदर होनी बहुत ही आवश्यक है। ट्रस्ट, फर्म बिलीफ इन अ रिलायबिलिटी, एबिलिटी, स्ट्रेंथ ऑफ समवन और समथिंग। हमें दूसरों पर उनकी विश्वसनीयता, उनकी क्षमता और उनके सामर्थ्य पर हमें विश्वास करना चाहिए, तभी हम उनसे अच्छा कार्य करवा सकते हैं जो कि हमारे उद्देश्य की पूर्ति के लिए हो सकता है। सपोर्ट, गिव हेल्प, इनकरेजमेंट और अप्रूवल। जीवन में हमें दूसरों को सहायता करनी चाहिए। जो चीज़ें उसे नहीं आती है उसके बारे में उसे अवगत कराना चाहिए, उनमें आत्मविश्वास जगाना चाहिए। नेक्स्ट जो मूल्य है वो है रिस्पेक्ट, अ फीलिंग ऑफ एडमायरेशन फॉर समवन बिकॉज ऑफ देयर क्वालिटीज़। अगर सही में उस व्यक्ति के अंदर गुणवत्ता है तो हमें उसकी गुणवत्ता को नवाजना चाहिए, उसे आदर की भावना से देखना चाहिए, उसे आदर देना चाहिए। तो इन सभी मूल्यों का जीवन में बहुत ही महत्व है, वैयक्तिक जीवन में भी और हमारे एनसीसी के कार्यविधियों में भी इन सभी मूल्यों का बहुत ही होना आवश्यक है। एक अच्छा व्यक्ति होने के लिए, एक अच्छा नेता होने के लिए, एक अच्छा कैडेट होने के लिए हमें इन सभी गुणों को आत्मसात करना चाहिए। संक्षेप में हम यही कहना चाहते हैं कंक्लूजन में, द नेगेटिव एट्रीब्यूट्स टू बी गार्डेड अगेंस्ट would large be such as ignorance, ego, that is attachment to self or prominence of I, temptation, envy, hate और jealousy, lack of confidence। इसका मतलब जब हम नकारात्मक सोच में रहते हैं तब हमारे अंदर इग्नोरेंस आ जाता है, हमारा ईगो बढ़ जाता है, हम केवल मैं के बारे में सोचते हैं,
हाँ, दूसरों के प्रति हमें जेलसी होने लगती है, हम दूसरों का हेट करने लगते हैं, और इन सब के कारण फिर लगता है कि वह हमसे आगे बढ़ रहा है और हम पीछे हैं, और हमारा कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे कम होते जाता है, हम उसको खोने लगते हैं. These have deleterious effect and affects the individual in his thoughts and action. An individual has to evolve his own mechanism to counter these to become a successful and ideal leader. और इन सभी का परिणाम हमारे विचारों पर होता है, हमारे कार्य करने के पद्धतियों पर होता है. तो हर एक व्यक्ति ने इन सभी मूल्यों को आत्मसात करके नकारात्मक सोच को निकालना चाहिए और उसके जगह पर अपनी सोच को सकारात्मक बनाना चाहिए. समूह के हित के लिए जो जो हम कर सकते हैं वह करने का प्रयास करना चाहिए. एक अच्छा नेता बनकर समूह को दिशा देनी चाहिए और उस नेता की बातों का सभी ने स्वीकार करना चाहिए. इसके लिए हमें एक अच्छे मौलिक विचार आत्मसात करने बहुत ही आवश्यक है. थैंक यू.